ملتان میں شہریوں کو مفت آٹے کے پوائنٹس پر پریشانی کا سامنا۔ ولایت حسین کالج آٹا پوائنٹ بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث غیر فعال، آٹے کے حصول کے لیے آنے والے شہری خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سویرا طارق۔ ملتان میں شہریوں کے لیے مفت آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ ولایت حسین کالج آٹا پوائنٹ بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث آج بند رہا۔ آٹے کے حصول کے لیے آنے والے مردوں خواتین کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ صبح سے آٹا لینے کے لیے خوار ہو رہے ہیں مگر آٹا نہیں ملا۔ اتنی مہنگائی ہے، آٹا کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، مہینہ ہو گیا گھوم رہے ہیں، کچھ عوام کے لیے مہربانی کر۔ اس کی وجہ سے آٹا نہیں آیا تو لہٰذا کل صبح 6:30 بجے ہم پرسوں بھی آئے تھے، پرسوں بھی یہی سنا کہ بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہے، کل کو ملے گا۔ شہر میں فعال واحد آٹا پوائنٹ پر انتظامات ناقص ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ شدید رش کے باعث شہریوں کو کئی گھنٹے تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا۔ پارکنگ کا انتظام نہ ہونے کے سبب ٹریفک بری طرح جیم ہو گئی۔ آٹا نہیں مل رہا، جہاں بھی جا رہے ہیں کہتے ہیں آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، غریب ہے۔ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نہیں ہے، اب ادھر اسٹوروں پہ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ابھی نہیں ہے۔ ہمیں آٹا نہیں ملا، ہم صبح سے بچوں کو گھر پہ اکیلے چھوڑ کے آئے ہیں، نہ آٹا مل رہا ہے نہ کچھ۔ روز کہتے ہیں کہ کل کو ملے گا، آج نہیں تو کل کو، پھر بعد میں ملتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی شہریوں کو آٹا نہیں مل سکا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرا طارق، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین کا آٹا پوائنٹس کا دورہ، شہریوں سے آٹے کی فراہمی میں درپیش مسائل بارے دریافت کیا۔ سیکرٹری بورڈ آف ریونیو جنوبی پنجاب نے آٹا پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید مشہد رضا کاظمی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید آمنہ مودودی ہمراہ ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ظہیر میو سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر سیکرٹری بورڈ آف ریونیو جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو رمضان المبارک میں مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ مفت آٹے کی فراہمی میں تعطل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دنیا پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر مفت آٹا پوائنٹ کا دورہ، سیکرٹری ریونیو جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین نے آٹا پوائنٹ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ریونیو امجد شعیب ترین کے ہمراہ اے ڈی سی جی آر آمنہ مودودی تھے۔ امجد شعیب ترین نے وہاں پر موجود لوگوں سے مسائل دریافت کیے۔ اسی حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ آج میں نے ڈیزیگنیٹڈ ڈسٹرکٹ لودھراں جو مجھے ہوا تھا، میں نے اس کو وزٹ کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر بہت اچھے انتظامات ہیں، اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر رش نہیں ہے بالکل، کیونکہ اسپیشیس پلیسز پہ انہوں نے پوائنٹس لگائے ہیں، تو کسی قسم کی رش کی شکایت بھی نہیں ہے، اور خواتین کے اور مردوں کے علیحدہ علیحدہ پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح آٹا بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، یہاں پر اویلیبل بھی ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر میں نے سرسری طور پر جو چیک کیا ہے اس میں کوالٹی آف آٹا بھی بہتر نظر آتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سیمپلنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ڈی ایف سی صاحب بھی، اور وہ لیبارٹری میں بھجوائی ہوئی ہے، اس کے ریزلٹس آنے پہ اگر کوئی شکایت ہوگی تو اس کو بھی۔ ممبر جوڈیشنل بورڈ آف ریونیو پنجاب سید نجف بخاری کا دورہ بہاول نگر، سلکرج پارک، خالد مقبول پارک، بہاول نگر اور ڈونگا بونگا میں آٹا پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ آٹا پوائنٹس پر شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ممبر جوڈیشنل سید نجف بخاری نے آٹا پوائنٹس پر ضلع انتظامیہ کے انتظامات کو سراہا۔ اس موقع پر ممبر جوڈیشنل بورڈ آف ریونیو سید نجف بخاری کا کہنا تھا کہ مفت آٹے کی سپلائی پنجاب حکومت کا عوام دوست اقدام ہے۔ عوام کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ریلیف مل رہا ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا دورہ لیا۔ کمشنر نے آٹا پوائنٹس، کوٹ سلطان، میلاد گراؤنڈ اور کینال کالونی لیا کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے کمشنر ڈی جی خان کو بریفنگ دی۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے یوٹیلٹی سٹور کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے کوٹ سلطان میں مفت آٹا پوائنٹس پر آٹے کی کمی کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر کا کہنا تھا ضلع لیا کے مفت آٹا پوائنٹس پر انتظامات کافی اطمینان بخش ہیں۔ آٹا پوائنٹس پر کام کرنے والے سٹاف کو آرام کے لیے متبادل ایام میں چھٹی دی جائے۔ جام پور میں ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور خان بلوچ کی زیر صدارت اجلاس راجن پور کے کمیٹی روم میں ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صفات اللہ، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری پرویز احمد اجلاس میں شریک ہوئے۔ انجمن تاجران کے رشید ساجد سمیت دیگر تاجر بھی اجلاس میں شریک۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور خان بلوچ کا کہنا تھا کہ ماہ سیام کے دوران چینی کے 4 سستے پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں۔ ماہ سیام کے دوران پوائنٹس پر 12 سے
5 रुपए किलो कम रेट पर चीनी मिल रही है। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ फराहम करने में हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। डेरा गाजी खान में मार्केटों को मुफ्त आटे की फराहमी, फ्लोर मिल्स को आटे की रिसीविंग ना देने का मामला। इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डीजे खान के ओहदेदारान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको वहीं ले चलते हैं। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त आटा स्कीम थी, इसकी जो SOPs बनाई गई हमारी एसोसिएशन की मुशावरत से लाहौर में सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब और CM साहब ने, उसमें ये वाज़े तौर पे जो SOP है उसमें कहा गया कि जो आटा सप्लाई होगा उसकी जो रिसीविंग होगी वो मिल गेट के ऊपर ही होगी। वहाँ जो उनका नुमाइंदा होगा वो मिल गेट पे आएगा, वहाँ से आपको वसूली देगा, ये ले जाएगा। तो अब पोजीशन ये है कि फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ तावन करें। अब तावन का पोजीशन ये है कि हम यहाँ से ले जाते हैं वहाँ पे, कभी जो है ना मतलब हमें अब ये देखें हम इतने अरसे से दे रहे हैं, कहीं पे जो है ना रिसीविंग नहीं दी जा रही हमें। तो हम ये लाख करोड़ रुपए का जो आटा दे रहे हैं ये हमारे किस खाते में जाएगा? कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं। हम कमिश्नर साहब से भी 12 दफ़ा मिले हैं, DC साहब से भी मिले हैं, ADCR साहब से मिले, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले अपना सरवर वाली में लगदा फ्लोर मिल का आटा लूट लिया गया। वहाँ पे जो SHO साहब हैं और वहाँ एक ASI हैं, उन्होंने पब्लिक को कहा कि आप जाके आटा इनसे ले लें, लूट लें। वो हमने अपने DFC साहब को एप्लीकेशन दी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज हबीब फ्लोर मिल और लगदा फ्लोर मिल के साथ दोबारा चोटी जरी में जो है ना इशू पेश आया। तो वहाँ पे जो पटवारी हैं वो कहते हैं हम आपको रिसीविंग तब देंगे कि आप हमें इसके बदले में 10-10 थैले दें। तो देखें अब फ्लोर मिल वाला क्या काम करे। इस पोजीशन में हम माजरत खां हैं, हम कल से अपने डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में सप्लाई नहीं करेंगे। एक सूरत में मुमकिन है कि वो अपनी रिसीविंग हमसे ले जाएं, मिल गेट से वो आटा ले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो हमें कहें कि आप वहाँ पे पहुँचा दें तो हम अपने मनपसंद लोगों को देना चाहते हैं, इसलिए हम माजरत खां हैं, हम कल से आटा सप्लाई नहीं करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, बहावलपुर के बासी महंगाई की दलदल से ना निकल सके। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम, सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए गए। फ्रूट मार्केट में रेट लिस्ट आवेजा करने के बावजूद फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। मसनूई महंगाई पर शहरियों का पारा हाई हो गया। मज़ीद देखिए ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। माह रमजान आते ही बहावलपुर में मसनूई महंगाई अरूज पर पहुंच गई। शहरी जिला इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ फट पड़े। कहा माह सियाम आते ही महंगाई माफिया बेलगाम हो गया। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। फ्रूट मार्केट में रेट लिस्ट के मुताबिक फल दस्तयाब ही नहीं है। सरकारी नर्ख के मुताबिक 180 रुपए वाला दर्जा दोम सफेद सेब 250 रुपए, 225 वाली स्ट्रॉबेरी 350 रुपए में दस्तयाब, जबकि फी दर्जन केला 220 की बजाय 300 रुपए से ज्यादा में फरोख्त किया जा रहा है। रमजान से एक दिन पहले 150 थी, 100 रुपए 120 थी स्ट्रॉबेरी, अब 300 रुपए स्ट्रॉबेरी। खरबूजा 60 रुपए किलो, अब 300 रुपए किलो। इन्होंने अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है। आड़ती का काम कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। शहरियों का कहना था कि फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ताहम इंतजामिया ग्राफ फरोशों से जान छुड़वाने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बहावलनगर में रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का आगाज होते ही फलों की कीमतें भी बेकाबू हो गईं और अफ्तारी के वक्त फलों का इस्तेमाल शहरियों के लिए और भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। इसका रेट जो है ना वो डबल हो गया है। लेट्स सपोज अगर ये 200 के थे तो 300 रुपये कर दिए। अगर बनाना जो था वो 120 रुपये था तो 180 कर दिया है। तो हर चीज़ के जो रेट हैं वो डबल कर रहे हैं। सिर्फ गरीब के लिए अमरूद ही बचे, अमरूद लेके जाते हैं, अफ्तारी हो जाती है, गुजारा हो जाता है बस उसी से। फिर या फिर खीरा वगैरह बच गया। हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ों के ऊपर। तो सब कुछ बस हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है काम कर रहा है। जिसका जो दिल में आता है, जो बात दिल में आती है वो किए जा रहा है। जैसे जिसका दिल करता है वो काम किए जा रहा है, चीज़ें सेल कर रहा है। माह सियाम शुरू होते ही पिपला में भी महंगाई का जिन काबू से बाहर। फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा और शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है फलों और फ्रूट के साथ रोज़ा अफ्तारी नामुमकिन हो गई है। सेब, केला, अंगूर और खजूर के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ये मैंने जी 1 किलो ली है, ये 400 को भी क्रॉस कर गया है। ये मेरे साथ वसल है, आलू है, ये भी क्रॉस कर गए हैं। लेकिन रेट इतने बढ़ गए हैं कि सोच ही नहीं सकता गरीब आदमी, पूछ भी नहीं सकता, खौफ होता है। और जो खरीदता है वो रोना शुरू हो जाता है। जब मेरे वजीर आजम
शहबाज शरीफ से यही अपील है, बराए मेहरबानी कुछ गरीब आवाम के बारे में सोचें। ये जितने भी आइटम हैं, मैं क्या एक एक बताऊं, कौन सा बताऊं, लेकिन नहीं, बता ही नहीं सकते कि इतने रेट बढ़ गए कि गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। बराए मेहरबानी अवाम के बारे में अवाम। लोधरा में मॉडल बाजार इंतजामिया माह रमजान में सार्फिन को सस्ती अशाए खुरनोश फराहम करने के लिए सहूलत स्टॉल कायम कर रही है। सहूलत स्टॉल से घी, चीनी, दालें, चावल, खजूर समेत दीगर अशिया सरकारी निर्खों से कम निर्ख पर दस्तियाब कर रहे हैं। इस हवाले से सार्फिन का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे हमने चावल खरीदे हैं, ये मार्केट से तकरीबन 100 रुपये कम मिल रहे हैं। 200 रुपये में हमने ये खरीदे हैं, बाहर से हमें मिल रहे हैं 300 रुपये के। ठीक है ना, तो बाज़ार की बहुत अच्छी सहूलत है आवाम के लिए। हमारा तो ये पैगाम है कि आवाम इधर से सौदे ले, जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं इधर से लें, क्योंकि ये सहूलत बाज़ार से फ़ायदा उठाएं। तो पहले तो आपको पता है कि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाए लगे गवर्नमेंट ने, लेकिन हमने आवाम को सहूलत तो देनी है। हमारी जो कंपनी है पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी, इनका मकसद यही होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए सहूलत स्टॉल का इनकार कर दिया गया है। सहूलत स्टॉल पर आवाम को हम सस्ती चीज़ें मुहैया करते हैं, जैसे कि बाहर चीनी है 105 रुपये, लेकिन हम 91 रुपीज़ दे रहे हैं। उसके अलावा अगर बाकी चीज़ें देखी जाए, घी देखा जाए, घी में भी तकरीबन 20 से 30 रुपये कम है हमारी रेट ना। तो मैं तमाम शहरों से गुजारिश करूंगा कि आप इधर तशरीफ लाएं और हमारे मॉडल बाजार में तशरीफ लाकर जो हमारे सहूलत स्टॉल कायम किए गए हैं इनसे। रमजान और मुबारक आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। खरबूजा, केला, किन्नू समेत दीगर फलों की कीमतों में 200 रुपए फी किलो तक का इजाफा। खरीदार गायब, कारोबार मुतासिर, दुकानदार हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। शहरी महंगे फल देखकर ही दिल बहलाने लगे हैं। मजीद देखेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। माह रमजान आते ही महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। फ्रूट चाट के सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। केला 150 रुपए फी दर्जन, जबकि खरबूजा 200 रुपए फी किलो तक महंगा। सेब और स्ट्रॉबेरी में भी 150 रुपए का होशरुबा इजाफा। 4 दिन पहले अच्छे से अच्छा खरबूजा 80 रुपए किलो था, और 3 तय थी जो छोटा मीडियम दाना होता 60 रुपए 50 रुपए किलो था। अब खरबूजे का रेट, अच्छे खरबूजे का रेट 200 रुपए किलो है। ग्राहक नहीं ले सकता किसी चीज को भी। सेब देखते हैं तो वो 400 रुपए किलो बना, केला है वो 350-300 रुपए दर्जन केला हुआ है। दुकानदारों का कहना था कि मंडी में मुंह मांगे दाम मांगे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जबकि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। केला 300 रुपए दर्जन है, ठीक है, और किन्नू 350 रुपए रेट है ताज़ा किन्नू का। तो सेब 200 रुपए किलो है सफ़ेद। फ्रूट चाट के लिए कौन सा होता है? लोग गुर्बत की वजह से मर गए हैं, ऑटो की लाइनों में लोग मर गए हैं, लोग बहुत मुतासिर हुए पड़े हैं। लोग इसी वजह से इंसान चोरी डकैतियों में उतरे हुए हैं जब रोजगार नहीं होगा। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में चावल का रेट कम हो गया। चावल की कीमतों में 1000 से 1500 रुपए फी 40 किलोग्राम में कमी हुई है, और सेला चावल 12500 से कम होकर 11500 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गया। कच्ची कायनात चावल 12000 से कम होकर 10500 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गया है। फोर्ट अब्बास में जिला इंतजामिया गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। मरवट के नजदीक गैर कानूनी गंदम ले जाने वाला ट्रक पकड़ लिया गया। दौरान कार्रवाई 50 किलो के 1279 गंदम के थैले कब्जे में ले लिए। पुलिस थाना मरवट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कब्जे में ली गई गंदम फूड सेंटर पहुंचा दी गई है। ट्रॉलर के जरिए गंदम को दूसरे इजला में ले जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जिला इंतजामिया की इजाजत के बगैर गंदम जिला से बाहर ले जाने पर पाबंदी है। गंदम स्मगलिंग करने वाले अफराद मुआशरे के मुजरिम हैं। गैर कानूनी गंदम ले जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में शाशम्स फ्री आटा पॉइंट पर जिला इंतजामिया ने 2 फ्रॉडिये पकड़ लिए। दोनों मुलजिम दूसरे शहरियों के ID कार्ड रखकर आटा ले रहे थे। पुलिस का कहना है दोनों मुलजिमान की शनाख्त खादिम हुसैन और जावेद जमाल के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से शहरियों के 11 ID कार्ड बरामद हुए हैं। मुलजिमान को पकड़कर थाना मुमताजाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत इजलास। डिवीजन में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म। शहरियों को अर्जा निर्खों पर अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए डीसी काउंटर्स कायम किए जाएं। कमिश्नर आमिर खटक का इंतजामिया को कर्टिकल बाजार लगाने का हुक्म। आपको बताएं, गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत इजलास। डिवीजन में अशिया खुरोनोश की कीमतों का इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म दे दिया। शहरियों को अर्जा निर्खों पर अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए डीसी काउंटर्स कायम किए जाएं। कमिश्नर आमिर खटक का इंतजामिया को कर्टिकल बाजार लगाने का हुक्म। में डीसी डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की सरबराही में रमज़ान अफ्तार दस्तरखान का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक ने दस्तरखान का इफ्तिताह किया। वेलफेयर ट्रस्ट रमज़ान में इफ्तारी जारी रखेगा। डीसी का कहना था इज्तिमाई अफ्तार दस्तरखान जंग मोड़ पर लगाया गया है। मरकजी शाहराह पर मुसाफिरों के लिए इफ्तार का खुसूसी एहतमाम हो। वेलफेयर ट्रस्ट जाकिर मुर्तज़ा आशिक ने इसका कार खैर का ऐलान कर दिया है। बकर में डीसी डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की सरबराही में रमज़ान अफ्तार दस्तरखान का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक ने दस्तरखान का इफ्तिताह किया। वेलफेयर ट्रस्ट रमज़ान में अफ्तारी जारी रखेगा। डीसी का कहना था इज्तिमाई अफ्तार दस्तरखान जंग मोड़ पर लगाया गया है। मरकजी शाहराह पर मुसाफिरों के लिए अफ्तार का खुसूसी एहतमाम हो। वेलफेयर ट्रस्ट जाकिर मुर्तज़ा आशिक ने इस कार खैर का ऐलान किया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से सरकारी कॉलेजेस में हज़ारों असासा की कमी को पूरा ना किया जा सका। कॉलेजेस में लेक्चर्स की 2000 के करीब आसामियां खाली। ख़वातीन असासा की 1457 आसामियों पर भी तैनाती ना हो सकी। मेल कॉलेजेस में मुख्तलिफ मज़ामीन में 536 लेक्चरर्स की खाली आसामियों की निशानदही की गई। मेल कॉलेजेस में उर्दू के 125, सियासियात की 71, पाकिस्तान स्टडीज़ की 20, इस्लामियात की 223, फिज़िक्स की 99, कंप्यूटर की 98 आसामियाँ खाली। ख़वातीन कॉलेजेस में बायोलॉजी की 115, बॉटनी की 40, फिज़िक्स की 6, कॉमर्स की 27, इकनॉमिक्स की 152, अंग्रेज़ी की 230 सीटें खाली हैं। हिस्ट्री की 31, होम इकनॉमिक्स की 138, लाइब्रेरी साइंस की 42, रियाजी की 150, पाकिस्तान स्टडीज़ की 32, सियासियात की 169, साइकोलॉजी की 123, सराइकी की 20, सोशल वर्क की 27, सोशियोलॉजी की 46, शुमारियात की 108, जियोलॉजी की 41 आसामियाँ खाली हैं। अब आपको बताएं, मार्च के मुनासबत से बहावलपुर 23 आर्ट्स कौंसिल में तहरीक पाकिस्तान पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। 100 से ज़ायद तस्वीर में 1857 की जंग आज़ादी से लेकर पाकिस्तान बनने तक और तहरीक आज़ादी के कायदीन की जद्दोजहद को दिखाया गया है। इसी हवाले से डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। असल में हमारे पास जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो तहरीक पाकिस्तान के ऊपर बेस करती हैं। ये सारा पाकिस्तान के लिए जो एक उम्मीद का सफ़र था वो सारा तस्वीर की ज़बानी हमने दिखाया है। ये 1857 की जंग आज़ादी से लेके फिर 1947 तक क़याम पाकिस्तान है और उसके बाद जो हिजरत है वो भी एक मतलब एक तवील मरला है हिजरत का, तो उसको हमने एक तस्वीर की ज़बानी दिखाया है। दिखाने का मकसद यही है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को, नौजवान नस्लों को, उन लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया और क्या मुश्किलात रहीं, क्या ये सफ़र दरपेश रहे और उनको यहाँ से वहाँ से हिजरत करने में क्या मसाइल पेश हुए। तो ये अपनी आंखों से सारा कुछ देखा जा सकता है, इसको बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहानी ऐसी है पाकिस्तान की जो तस्वीर की ज़बानी है, कोई इसके लिए वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को ही तस्वीर देख के पता चल जाता है कि पाकिस्तान का हसूल कैसे हुआ, किन लोगों ने इसके हसूल के लिए कोशिश की, हमारी अवाम ने कैसे जद्दोजहद की और वहाँ से लेके यहाँ तक हिजरत का सफ़र कैसा था। तो ये बेसिक। मुल्तान में एडवोकेट नौरीन अंजुम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओहदे पर तकर्रुरी बारे अशाइया टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान और मेंबरान की जानिब से अशाइया का एहतमाम किया गया। मेंबर टैक्स बार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे पर तैनाती खुशाइंद है। तकरीब में सदर मलिक खादिम हुसैन मेतला, सदर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान गाजी ने शिरकत की।
मलिक मोहम्मद रफीक नायब सदर, मलिक मकबूल अहमद फाइनेंस सेक्रेटरी ने शिरकत की। मैडम फौजिया मलिक, मैडम महविश मोईद, सैयद जुनेद मुमताज शाह एग्जीक्यूटिव मेंबर की शिरकत। सीनियर मेंबरान मोहम्मद यूनुस गाजी, मियां अब्दुल सत्तार, जावेद अवैसी, अबू बकर की शिरकत। सीनियर मेंबरान मोहम्मद उस्मान चौधरी रियाज और नईम जफर ने शिरकत की। शमा जमील, रोबीना शकूर, राबिया चौहान, मदीहा किरण, आयशा वकार अशाइया में शरीक हुई हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान में एडवोकेट नौरीन अंजुम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओहदे पर तकर्रुरी बारे अशाया टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान और मेंबरान की जानिब से अशाया का एहतमाम किया गया। मेंबर टैक्स बार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे पर तैनाती खुशाइंद है। तकरीब में सदर मलिक खादिम हुसैन मेतला, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान गाजी ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद रफीक नायब सदर, मलिक मकबूल अहमद फाइनेंस सेक्रेटरी ने शिरकत की। मैडम फौजिया मलिक, मैडम महविश मोईद, सैयद जुनेद मुमताज शाह एग्जीक्यूटिव मेंबर की शिरकत। सीनियर मेंबरान मोहम्मद यूनुस गाजी ने शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।